السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل اور میں ہوں سہرش سلیم. نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. اس ملک میں ایسے لوگ آ گئے جو باہر اربوں کی جائیدادیں لیے بیٹھے ہیں لیکن 1 روپے کی بھی رسید نہیں دکھا سکتے. پیسہ کہاں سے آیا؟ وزیر اعظم عمران خان کے نواز شریف کا نام لیے بغیر طنز کے وار. وزیر اعظم کا کہنا تھا ملک میں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں جو قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیتے. یہ مافیا خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ انہیں NRO دیا جائے, غریبوں کو پکڑا جائے. مریم نواز نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور قرار دے دیا. کہا جب عمران خان کنٹینر پر تھے تو کہتے تھے مہنگائی تب بڑھتی ہے جب حکمران چور ہوں. پیٹرول, چینی, آٹا جب مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. عوام کو بدترین مہنگائی اور مسائل کا سامنا ہے. ان حالات میں مسلم لیگ نون خاموش نہیں, آواز اٹھا رہی ہے. وزیر اعظم کی حیثیت اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں. کراچی میں چند گھنٹے کی بارش میں سڑکیں ڈوب گئیں. اہم شاہراہوں پر پانی جمع. ناگن چورنگی پر ہر طرف پانی ہی پانی. گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں. شاہراہ فیصل پر بھی مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. دفاتر سے گھر جانے والے شہری پھنس کر رہ گئے. بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی. محکمہ موسمیات کی کراچی میں 25 ستمبر تک بارش جاری رہنے کی پیشگوئی. لندن میں بیٹھے نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین کا ٹیکہ لگا دیا گیا. سابق وزیر اعظم کو ویکسین لگائے جانے کی جعلی انٹری کا انکشاف. ڈیٹا انٹری کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک ویکسین 22 ستمبر کو شام 4:04 پر لگائی گئی. دوسری ڈوز کے لیے 20 اکتوبر کو بلایا ہے. نواز شریف کی ویکسینیشن کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں ویکسینیٹر نوید الطاف نے کی. مریم نواز نے صورتحال کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے رد عمل دیا کہ حکومت کی ہر چیز کی طرح ویکسینیشن بھی جعلی ہے. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی سے رابطہ. انتخابی اصلاحات کمیٹی سے متعلق تحفظات کا اظہار. مولانا فضل الرحمان نے کہا JUI کسی بھی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی, نہ ہی کسی پلیٹ فارم پر حکومت کے ساتھ بیٹھے گی. تین سالوں کے دوران توشہ خانہ میں کن کن ممالک سے کیا کیا تحائف آئے, کون سے تحائف وزیر اعظم نے کتنی ملائت میں خریدے, ریاست کو کل کتنی رقم ملی. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے حکومت سے تفصیلات مانگ لی. لیگی سینیٹر نے سوال سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کا پاکستان میں جاسوسی کرنے کا انکشاف. بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں را کے ایجنٹ ڈینیل نے کہا را اب بھی پاکستان میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے. جاسوسی کے لیے صرف بھارت لوگ بھیجتا ہے, پاکستان ایسا نہیں کرتا. اس نے را کی طرف سے پاکستان میں جاسوسی کی, پکڑا بھی گیا, 4 سال قید کاٹی. واپسی پر بھارتی حکومت نے اسے صرف 15,000 روپے دے کر چلتا کیا. اب وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی پر منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام. ریاست گجرات کی مندرا بندرگاہ میں مودی کے دوست اور فائنانسر کے زیر انتظام پورٹ سے $3 ارب کی 3,000 کلو گرام ہیروئن برآمد. حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے ناک کے نیچے کاروبار کیسے چل رہا تھا, کانگریس نے سوالات اٹھا دیے. قندھار میں رجسٹرڈ افغان کمپنی کی جانب سے گجرات بھیجی گئی تھی. اور
सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मकामी आर्टिस्ट का समंदर की गहराई में क़यादत की तस्वीर पेंट करके अपनी सरजमीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लंदन की, जहां फ्री स्पीच फोरम के ज़ेर एहतमाम अलखैमा रेस्टोरेंट में अमन के आलमी दिन की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ फ्री स्पीच फोरम के चेयरमैन राजा ज़ीशान ने सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब में मौजूद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से मुंसलिक अफराद ने फ्री स्पीच फोरम की आज़ादी इजहार और अमन की काविशों को खूब सराहा। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ अहमद अतीक की इस रिपोर्ट में। अमन के आलमी दिन और फ्री स्पीच प्रोग्राम की कामयाबी को मनाने के लिए फ्री स्पीच फोरम के ज़ेर एहतमाम अलखैमा रेस्टोरेंट लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर्स, MPs, काउंसलर्स और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फ्री स्पीच फोरम के चेयरमैन राजा ज़ीशान का कहना था, हमारे फोरम का मकसद मुआशरे में अमन बाहमी और मोहब्बत को फरोग देना और मिलजुल कर मुआशरे में मस्बत किरदार अदा करना है। आज मैं बहुत मशकूर हूँ जिस तरह से बड़ी तादाद में कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, और जो बुनियादी एक मकसद था पिछले 18 महीने से जो हम एक अपनी सीरीज लेकर चल रहे थे फ्री स्पीच के, उसके तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं शुरा उनको खिराज तहसीन पेश करना था जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल पीस डे की भी मुनासबत से हमने इवेंट किया है और हमने देखा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कौमियत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो एक मल्टी कल्चरिज्म का एक जो थीम है उसको हमने प्रमोट करना। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि एवरीबडी यहाँ पे जिस तरह से लोग शामिल हुए हैं, मुख्तलिफ तबकों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ कौमियत के लोग मौजूद हैं, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम इसी तरह से जारी और सारी रखेंगे। तकरीब में मौजूद हाउस ऑफ लॉर्ड बरतानिया के मेंबर लॉर्ड वाजिद खान, MP सैम टेरी, मेयर ऑफ रॉचडेल आसिम रशीद, MP यास्मीन कुरैशी, साबका मेयर रेड ब्रिज जुल्फकार हुसैन, मेयर ऑफ ईलिंग मुनीर हसन, कौंसलर वेटा बेगम, कौंसलर लैला बट, सियासी और समाजी कारकुन मुश्ताक लशारी, सियासी और समाजी कारकुन सलीम यासीन, अलखैमा रेस्टोरेंट के ओनर साजिद खान, सोलिसिटर रुमाना कोसर और क्रिस्टियाना बेकर का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद से मुआशरे में फेथ, पीस और हार्मनी जैसे जज्बात को फ़रोग मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ राजा ज़ीशान साहब का जिनकी दावत पर हम आए हैं। मेयर ऑफ रॉचडेल आसिम रशीद साहब मेरे साथ हैं, तो we think it's a great opportunity to speak to different communities। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो फेथ, पीस, हार्मनी, फ्री स्पीच के हवाले से मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ रीजन से लोग यहाँ आए हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। और ये प्लेटफॉर्म क्या है, पैगाम क्या है? पीस, लव एंड अमन। आज का इवेंट बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जो इंसान की फंडामेंटल राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर मर्द या औरत उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, उससे उसको राइट्स मिलती हैं, उसको उसके हकूक़ उससे मिलते हैं। आज मैं जिस इवेंट पे आई हूँ मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि यास्मीन कुरैशी साहिबा, बाकी जो हमारी ख़वातीन हैं वो बोली हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, वो बोली हैं पीस पे। हमारी दुनिया में आजकल ऐसे हालात चल रहे हैं दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट वी मस्ट स्पीक अबाउट पीस। वी मस्ट स्पीक अबाउट पीस एज एन इम्पॉर्टेंट इशू, एंड आई होप कि हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे इस तरह के इदारे हों, हम इस इशू को इनकरेज करें। Yes, John Lennon did imagine a world where all the people live in peace, and we all love that dream. And in fact, it is inherent, I think, in all religions, but especially in Islam, because Islam means peace. And if we have peace within ourselves, within everybody else, the environment, we will have also peace in heaven, peace on earth and peace in heaven. This is what it's all about. And I think the pandemic perhaps made us more peaceful people, more reflective people. Put people in place to go out and deliver those meals with their local trade unions, local churches, sending volunteers. Within a month, we were delivering over 4,000 hot meals a week to some of the most vulnerable residents who are at home shielded. And I tell you, I went out for many of those delivery runs myself because
seeing the difference of people coming together. You know, as a Labour MP, I'm proud to be Labour. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو راجہ ذیشان صاحب نے یہ جو فری سپیچ کے حوالے سے ایک سیمینار کیا ہے اس میں ہم ایز اے میئر آف راچڈیل مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو I'm really thankful. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹیز ہم ملٹی کلچر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کمیونٹی انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی کووڈ میں جس طرح ہم نے یہاں ایک مثبت دکھایا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی پیس کے حوالے سے, ہارمنی کے حوالے سے, کمیونٹی کوہیژن کے حوالے سے جب ہم کسی بھی ڈیفیکلٹ ٹائم میں کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. Peace is very important, and I think events like this are a wonderful way to remind, to celebrate and commemorate and encourage other people to also be involved in peaceful activities. There are a lot of problems across the world and we need peace for everyone. جس میں ڈگنیٹریز بھی آئی ہوئی ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ بھی, میئرز بھی, لارڈ میئرز بھی, تو آج کمیونٹی کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. Today I was invited by Raja Zishan. It's been a very brilliant event today. It's been all about peace and free speech. There's been a lot of dignitaries here, lots of local people here, and with the current climate, with the COVID, it's been very difficult. The world is in a difficult position. اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہیں تو ساری کمیونٹی میں آگے کام کرنے کا اور میں کام کرنے کا رجحان ہوگا. انٹرنیشنل پیس ڈے کے حوالے سے راجہ ذیشان صاحب نے آج یہ پروگرام ارینج کیا. میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی کاوش ہے اس میں, پچھلے 18-20 ماہ سے اس پہ کام کر رہے تھے. اور انٹرنیشنل امن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ونڈرفل ہے. اس طرح کے پروگرام کرنے سے کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے معاشرے میں. ہمیں اگر امن لانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا. فری اسپیچ نے جو کام کیا ہے پینڈیمک کے اندر, فنٹاسٹک. I'm really happy because اس نے گیٹ ٹوگیدر کیا ہے پوری کمیونٹی کو, جو بھی یہاں پر ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, دوسری کمیونٹی ہے, وکلا کمیونٹی ہے, سب کو اکٹھا کیا ہے اور ہر کسی کا جو ہے نا ایک میسج پوری دنیا میں پہنچایا گیا ہے اور پوری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک زوم میٹنگ کری ہے انہوں نے, اور بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہیں ہماری. الحمدللہ بہت زبردست کام کیا ہے. راجہ ذیشان کا بہت بہت شکریہ. جی, راجہ ذیشان نے جو آج یہ پروگرام رکھا ہے اس میں اویئرنیس کے لیے کہ فری اسپیچ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کو اویل کرنے کے لیے, اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے. یہاں پہ بہت ہی ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگ آئے ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, سب گیدر ہوئے ہوئے یہاں. آج کے ایونٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو راجہ ذیشان پروگرام کر رہے ہیں فری اسپیچ, اٹس اے ونڈرفل, ویری امپورٹنٹ اور ویری انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے جس میں کہ بڑی نالجبل ڈسکشنز ٹاپکس آتے ہیں. We need to care about each other. We need to give each other a leg up. And at the end of the day, we're all human beings. Humanity for Grenfell. And I think that's what this event is today. It's about humanity, isn't it? It's just about helping that other person who might not have had the best start in life, and maybe we can turn them into wonderful human beings. Let's do that. Let's work together and have a better tomorrow. ٹرکا کا کہنا تھا کہ ایسی گیدرنگ سے نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا مثبت تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے بلکہ کمیونٹی میں بھی باہمی محبت اور رواداری کو فروغ ملتا ہے. احمد عتیق, MM5 نیوز, لنڈن. اب بات کرتے ہیں جدہ کی, جہاں سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے مقامی سعودی آرٹسٹ نے سمندر کی گہرائی میں قیادت کی تصاویر کو پینٹ کر کے اپنی سرزمین سے والہانہ محبت کا اظہار کیا. تفصیلات شعیب الطاف کی اس رپورٹ میں دیکھیے. بحیرہ احمر میں سعودی لباس زیب تن کیے ماہر سعودی آرٹسٹ نے سمندر کی لہروں میں جا کر سعودی قیادت کی تصویر کو پینٹ کر کے منفرد انداز اپنایا اور اپنی سرزمین سے والہانہ محبت کا اظہار کیا. ماہر آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس نے قومی دن کی تیاری کے لیے جہاں غوطہ خوری کی مہارت حاصل کی, وہیں پانی کے اندر مخصوص اور موزوں رنگ کا بھی انتخاب کیا, جس کے بعد انہیں کامیابی نصیب ہوئی.
में जारी बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2021 से 23 की मुद्दत के लिए मुंतखब कर लिया गया। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पाकिस्तान का इंतखाब महफूज तरीके से एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग देने के साथ साथ जोहरी अदम फैलाव के आलमी मकसद के लिए उसके अज़्म के एतराफ़ की पहचान है। 35 अराकीन पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस के साथ IAEA के 2 आला तरीन पॉलिसी साज इदारों में से एक है। IAEA का इजलास माली बयानात, प्रोग्राम और बजट पर जनरल कॉन्फ्रेंस को सिफारिशात देता है, रुकनियत के लिए दरखास्तों पर गौर करता है, हिफाजती मुआहदों की मंजूरी देता है और हिफाजती मयारात की इशाअत करता है। पाकिस्तान IAEA के बानी अरकान में से एक है और कई सालों से इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बाकायदा मौजूदगी रखता है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के काम और एजेंसी के काम के तमाम पहलुओं पर उसके मुबाहिस में फ़आल और तामीरी हिस्सा डाल रहा है। डस्का थाना 17 के इलाका भिक्की सिंधवा में लर्ज़ाखेज़ वारदात के दौरान 6 साल के तालिब इल्म को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कत्ल होने वाले बच्चे और वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मज़ीद जानते हैं अमीन रजा मुगल की इस रिपोर्ट में। डस्का थाना 17 के इलाका भिक्की संधवा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। गरीब चरवाहे नूर हुसैन का 6 साल इकलौता बेटा वलीद, जो पहली क्लास का तालिब इल्म था, जिसे नामालूम मुलजमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वलीद स्कूल से छुट्टी के बाद बकरियां चराने गया मगर घर वापस न आया तो इसके वालिदैन और गाँव वालों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। वलीद की लाश गाँव की एक हवेली में पड़ी तूड़ी की बोरी से बरामद हुई। बच्चे के सर पर जख्म के निशान थे जिसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मासूम बच्चे की नाश घर पहुँचते ही कोहराम मच गया। वालिदैन गम से निडाल और हर आंख अश्कबार थी। 17 पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहलम में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर और साबिक MPA चौधरी नासिर ने केक काटा। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला सेक्रेटेरिएट पीपल्स पार्टी जहलम में और चौधरी अली असगर साहब के घर में एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा गया। इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे कारकुन मौजूद हैं। उनमें से जिला सदर चौधरी तस्लीम नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पूरे ज़िले की तंजीमों को यहाँ पे इनवाइट किया है और आज हमारे यंग लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 32वीं सालगिरह के मौके पर हमने केक काटा है और हमने ऐद किया है कि हम इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब की जरदारी साहब के साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, क्योंकि आवाम हमारे साथ हैं और हम इंशाल्लाह ताला आवाम के साथ हैं। और बिलाशुबा जो महंगाई की ताबड़तोड़ जो हम हमले हो रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं हम। और जो नाकाम गवर्नमेंट है इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज भी करते हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, क्योंकि जो हालात मुल्क के और आम मज़दूर के, आम मुलाजमत पेशा लोगों के हैं वो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजरे हैं। तब्दीली करते हुए आपका शौक़ उतर गया है। अपनी आने वाली नस्लों का सौदा मत करें, इस मुल्क पाकिस्तान का सौदा मत करें, अपने मज़हब इस्लाम का सौदा मत करें। आपके अगर हो सके हमारा साथ दें और इंशाल्लाह ताला हम आपको एक नया पाकिस्तान, नया विजन, नया लीडर दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में और उसके साथ आवाम आएगी इंशाल्लाह। और जी जैसा कि जिला सदर साहब का कहना था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आवाम के साथ हैं और साथ रहेंगे। आज उन्होंने 32वीं सालगिरह मनाई है बिलावल भुट्टो साहब की और आइंदा भी वो कहते हैं जोश और खरोश से ये सालगिरह मनाएंगे। जी मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पश्तून कल्चर डे मनाया गया। इस बार लाला उस्मान की शहादत को मद्देनजर रखते हुए पश्तून कल्चर डे सादगी से मनाया गया। इस हवाले से पश्तून रहनुमा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अपनी सकाफत को, अपनी एक पहचान को और अपनी ज़बान से मोहब्बत करने को पूरी दुनिया को दिखाना होता है कि हम इस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है। और ये एक कल्चर आज नहीं, 6000 साल पहले से ये कल्चर चलता आ रहा है। पश्तून 6000 साल पुरानी एक तारीख़ रखते हैं और बसूरत के अगर इनको आप इंग्लिश में, अरबी में, किसी और ज़बान में कहें तो ये नहीं सीख सकते हैं। तो इस मुल्क में
होना ये चाहिए कि पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, दीगर हमारी जो अक़वाम है उनके कल्चर को एक सही तरीके से, महज़ब तरीके से, सरकारी तौर पर, कबायली तौर पे मनाना चाहिए, जिसमें नफ़रतों का ख़ात्मा हो, जिसमें मोहब्बतों का दस्त दिया जाए। और आज हम कल्चर डे सादगी से मना रहे हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पश्तून दहशतगर्द नहीं है, पश्तूनता पसंद नहीं है, पश्तून अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हर वक्त, हर टाइम, जब भी भी एक गुलदस्ते की तरह है जो सब कौमें इसमें आबाद है और सब एक दूसरे के कल्चर डे मनाते हैं। मैं अपनी पश्तून आने वाली नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने रवायत को बरकरार रखे और हमेशा अपने कल्चर को जो बरकरार रखे। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी आज पश्तून कल्चर डे बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सितंबर को पश्तून कल्चर डे बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद पश्तून सकाफत को दुनिया भर में उजागर करना है। जो कौमें अपनी तहजीब व सकाफत को फिरोग देती हैं, इस दुनिया में अपनी पहचान करवा कर कामयाबियों की मंजिल तय करती हैं। पश्तून डे पर सकाफत को उजागर करने के लिए रवायती पगड़ियाँ एक दूसरे को पहनाई जाती हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की ने पश्तून कौम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। मैदान जंग हो या खेल के मैदान, पश्तून भाइयों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पश्तून भाई 23 सितंबर को अपना कल्चर डे जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं और नौजवान अपना रवायती रक्स भी पेश करते हैं। मानावाला में हजरत पीर अब्दुल्ला शाह साहिब के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें ज़ायरीन की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। मजीद जानते हैं MF5 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अली अब्बास की इस रिपोर्ट में। मानावाला वाड़ा धनोलिया में पीरो मुर्शद अब्दुल्ला शाह साहब के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। दरबार पाक को गुस्ल दिया गया और चिरागों से मुनव्वर किया गया। उर्स मुबारक के गद्दी नशीनों ने उर्स को 4 चांद लगाए, जिनमें शौकत अली, हाजी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन लियाकत अली वाड़ा धनोलिया, चौधरी सलाहुद्दीन, राना सैफुद्दीन सैफ, राना मसूद शामिल हैं। महफिल समा में फैसलाबाद से मरूफ कवालों ने कवाली पेश की। उर्स मुबारक में लंगर का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। उर्स मुबारक में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा सहाफ़ी तंजीमों ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट सैयद अली अब्बास, मानावाला। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने टोबा टेक्सिंग का दौरा करके थाना चटियाना और सदर मालखाना की इंस्पेक्शन की। DPO राना उमर फारूक ने उनका इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। RPO ने थाना चिटियाना की इंस्पेक्शन की। दौरान इंस्पेक्शन उन्होंने थाना की इमारत, रजिस्टर, फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड रूम, सफाई, मुहर्रर दफ्तर, बैरक मुलाजमीन, तफ्तीशी अफसरान के कमराजात और दीगर रिकॉर्ड को चेक किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मालखाना सदर की भी इंस्पेक्शन की, जहां उन्होंने असलहा, मनशियात, मोटर व्हीकल्स और रिकॉर्ड मालखाना को चेक किया। इस मौके पर RPO फैसलाबाद ने कहा कि क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में टोबा टेक्सिंग पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। DPO कसूर इमरान किश्वर ने कसूर के बाजारों का दौरा किया। मरकजी अंजुमन ताजरान कसूर के जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली खोकर, मेहर शान इलाही, हाजी मंजूर कोकब और दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। DSP सिटी मलिक याकूब अवान, DSP ट्रैफिक, SHO A डिवीजन और SHO B डिवीजन भी मौका पर मौजूद थे। DPO कसूर इमरान किश्वर ने कहा, शहरियों समेत ताजरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ताजिर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ताजिर अपनी तजारती पॉइंट्स पर CCTV कैमरे नस्ब करवाएं और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें।
उनका मजीद कहना था कि कसूर के बाजारों में पुलिस गश्त के निज़ाम को भी मजीद मौसर बनाया जा रहा है। MF5 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जिंडो के गुराया के स्कूल का दौरा किया और जहर का पानी स्कूल से निकालने के लिए अहकाम जारी किए। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। MM5 न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि गांव के स्कूल में जोहड़ का पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से तुलबा लोगों की छतों, डेरों और मस्जिद में तालीम हासिल करने पर मजबूर थे। खबर चलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर डस्का बिलाल बिन अब्दुल हफीज ने गांव जंडू के गुराया का दौरा किया और जहां पर स्कूल में पानी जमा होने की वजह से तदरीसी अमल रुका हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर सब इंजीनियर को बुलाया और क्रेन लगाकर पानी का कुदरती रास्ता खोलने की हिदायत की। उन्होंने पानी के कुदरती रास्ते में तजावुजात के खात्मे के भी अहकामात जारी किए। इलाकाई मसाइल उजागर करने पर अहले खाना ने MM5 न्यूज़ की काविशों को भी सराहा। सिंध हुकूमत के सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। हेरो खान के नवाही गांव मिजारी मस्तोई का प्राइमरी स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है, जिससे इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक हेरो खान के नवाही गांव मजारी मस्तोई का स्कूल काफी सालों से बंद है। रोजाना बच्चे आते हैं लेकिन उस्ताद मौजूद नहीं होता। स्कूल की बंदिश के खिलाफ गांव के रिहायशियों ने अपने बच्चों समेत एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके गांव के स्कूल में काफी सालों तक उस्ताद मुकर्रर नहीं किया गया था। महकमा तालीम के अफसरान को मुतादिद बार शिकायत की लेकिन कोई भी दादरसी नहीं हो रही। स्कूल तो खुला है मगर टीचर गायब हैं। हम ये एहतजाज रिकॉर्ड कर आला अख्तियारों से मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे स्कूल मजारी मस्जिद से ये नाजायज़ी क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे 100 से 150 शागिर्द मौजूद है। ऊपर रजिस्टर में एक ही शागिर्द लिखा गया है। ये क्या वजह है और किस वजह से, ये मास्टर से इंक्वायरी की जाए और इस इलाके के जो हेड मास्टर है उससे इंक्वायरी की जाए। इस गाँव का स्कूल है मजारी मस्तई का, यहाँ पे 4 टीचर मुकर्रर हैं और एक आ रहा है, वहाँ पे रजिस्टर ऊपर एक ही बता रहा है, एक बचा रहा है। इधर देखो 150 शागिर्द है, ये हमारे स्कूल से क्यों शुरू किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने EDO दादू, सेक्रेटरी तालीम और वजीर तालीम सैयद सरदार शाह से अपील की कि गांव मजारी मस्तोई के स्कूल में उस्ताद मुकर्रर करके सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। हुकूमत बलोचिस्तान की तालीमी एमरजेंसी के दावे ही रहे। डेरा भुगटी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कली सावन खान बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे शाह अली बुगटी से। जी शाह अली बुगटी, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, ये स्कूल 1979 में वजूद में आई और मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद भी इस स्कूल में तालीम हासिल की है और आज मैं इस स्कूल पे टीचर बना हुआ हूँ और बच्चों को तालीम दे रहा हूँ। और स्कूल की हालत आप लोगों के सामने है, ना बिल्डिंग है, ना छत है, ना कोई कमरा है, कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चों की तादाद देखिए, काफ़ी तादाद है बच्चों की। ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ हमारे पास वसाइल नहीं है, उसके नाम अभी तक हमने दाखिल नहीं किए हैं। 5-7 बच्चे ऐसे भी हैं बैठे हुए हैं, आप बेशक उससे पूछ सकते हैं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के इदारों से, खुदारा तरस खाएँ, बच्चों पर रहम करें। आने वाले मुस्तकिल बच्चे ये हैं, खुदारा इसकी तालीम पर तवज्जो दें। हम लोग आप लोग अपील करते हैं। मैं स्कूल बृष्टि में पक्को का स्नगने हरदरा में स्कूल पक्को का माता रोज कलिस्तीन रोज मार गरम खुश में भरिया। मैं स्कूल पक्को में बस्ता और बेगे में बस्ता काफी कुला मिसे मादरे पेरागु में बस्ता छिया और पेरागु में मिसे नहीं छिया। दादू में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का काम 8 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। 15 लाख से जायद आबादी रखने वाले जिला दादू इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम है। तफसीलात जानते हैं अजीजुल अखास के लिए किस रिपोर्ट में। 400 से ज्यादा बेड्स पर मुश्तमिल तामीर होने वाले DHQ अस्पताल का काम सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से 8 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 मार्च 2013 में 4 अरब की लागत से शहीद बेनजीर भुट्टो हेल्थ इंस्टीट्यूट के नाम से DHQ अस्पताल का संगे बुनियाद रखा था।
बदकिस्मती से अस्पताल की जदीद तरीन इमारत बनाने का काम शुरू हुआ, जो कि 18 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 8 साल से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन DHQ अस्पताल अभी तक मुकम्मल ना हो सका। दादू के शहरियों का कहना है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्हें तिब्बी सहूलियात के लिए मजबूर होकर कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना जाना पड़ता है। शहरियों ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचिहो से अपील की कि जल्द अज जल्द DHQ अस्पताल का काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि दादू की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम हो सकें। हॉस्पिटल 400 बेड जो 8-9 साल से उनका काम बंद पड़ा हुआ है और जो 8-9 साल पहले पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया था कि दादू डिस्ट्रिक्ट के लिए 400 बेडों की हॉस्पिटल का मैं ऐलान करता हूं, मगर वो उसकी ज़ेर तमीर अभी तक आध में रुकी पड़ी हुई है और ये मेगा प्रोजेक्ट करोड़ों अरबों रुपए का जो अभी तक बना नहीं है और दादू ज़िले की आवाम सफ़र कर रही है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टरों की खोट है और मुख्तलिफ शोबों की खोट है, दिल के अवार्ड वो एक्टिव नहीं है। तो ये 400 बेडों की हॉस्पिटल बनेगी तो दादू डिस्ट्रिक्ट के काछो जोई के लोगों को इस पर फ़ायदा मिलेगा। मैं मुतालबा कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि जो 400 बेडों की हॉस्पिटल का काम रुका पड़ा है वो हंगामी बुनियादों पर उनका काम किया जाए और हॉस्पिटल को कंप्लीट किया जाए तो इस दादू की आवाम को उसको फ़ायदा पड़े। शांगला की 8 लाख आबादी के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी में तमाम जदीद मेडिकल आलात, टेक्निकल स्टाफ और हर किस्म की सेहती सहूलियात समेत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को रोल मॉडल बनाने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राबिया वहीद ने अमली इकदाम उठाने का अज़्म कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शांगला से वजीर मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। शांगला की 8 लाख आबादी का सबसे बड़ा अस्पताल अलपुरी में तमाम जदीद मेडिकल आलात, टेक्निकल स्टाफ और हर किस्म सेहत सहूलियात समेत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को रूरल मॉडल बनाने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राबिया वहीद ने अमली इक़दाम उठाने का अज़म कर लिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शांगला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तरीन ज़िला है, यहाँ सेहत सहूलियात का फुकदान है। यहाँ के शहरी ये अमर मजबूरी अपने मरीजों को स्वास्थ्य ले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी में आप जदीद मेडिकल आलात, एक्सरे प्लांट, सिटी स्कैन मशीन, लेबर रूम और ब्लड बैंक वगैरह को फ़ाल बनाया जा रहा है। आप मरीजों को स्वास्थ्य की बजाय अपने ही ज़िला में सर्जरी समेत दीगर हर किस्म जदीद और मेयारी सेहत की सहूलत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी में मुयस्सर होगी। डॉक्टर राबिया वहीद का मजीद कहना था कि सेहत इंसाफ कार्ड पर अब तक 800 सर्जरियाँ की गई है। सेहत इंसाफ कार्ड सूबाई हुकूमत का एक इनकलाबी इक़दाम है। अलपुरी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना होता है। अस्पताल में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। उन्होंने सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी में एक्सप्रेस लाइन और सोलराइज सिस्टम फराहम करने का मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जदीद किस्म की मशीनरी मौजूद है, लेकिन टेक्निकल स्टाफ की कमी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी को मजीद फ़ाल बनाने के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाएंगे ताकि यहाँ के गरीब शहरियों को सेहत की सहूलियात उनकी दलील पर मुयस्सर हो। कैमरा टीम के साथ वजीर मोहम्मद, शांगला। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है और गर्मी का जोर भी टूट गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी लौट आई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद कयूम से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। यहाँ पर इस वक्त मौसम खुशगवार है, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी कदरे कमी वाक़या हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों की बात की जाए तो वादी नीलम और वादी लिपा के इलाकों में सर्दी लौट आई है। लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हालिया बारिशों की वजह से SDMA ने अलर्ट भी जारी किया है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर पहाड़ी इलाकों का सफ़र न करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है ये हफ्ते के रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी, पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम भी खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। मजीद जानते हैं विहाड़ी से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे शफकत माही से, जो कि इस वक्त कुछ शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी शफकत माही, आगाह कीजिएगा, शहरी बारिश कैसे एंजॉय कर रहे हैं?
जी, पंजाब भर की तरह बिहाड़ी में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और शहरी निकले हुए हैं, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले काफ़ी दिनों से बिहाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप में निकलना मुश्किल होता था, कमरों में जो हबस हो जाती थी। अब बच्चों ने हमारे मस्जिद में नमाजों के बाद हमने दुआएं कराई, जुम्मे वाले दिन भी हमने बारिश की दुआ कराई है, मगर आज अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बिहाड़ी को नवाजा है और मेरे ख्याल काफ़ी तकरीबन 2-3 घंटे से लगातार बारिश जारी है। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल से उससे कहना चाहूँगा, बल्दिया बिहाड़ी को भी चाहिए जो सड़कों पर गलियों में पानी खड़ा है इसको ख़त्म करें, फिर फौर ख़त्म करें, ताकि जो आने वाला महकमा सेहत ने हमें बताया कि जो डेंगू की बीमारी सर उठा रही है हम इससे बच सकें, डेंगू को भी काबू पाया जा सके। अगर पानी खड़ा होगा तो इसमें डेंगू पैदा होगा, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी। जी, जिस तरह से शहरी बता रहे थे कि डेंगू से हमें एहतियात करनी चाहिए, आपको ये भी बताते चलें कि ये बारिश का सिलसिला 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जारी रहेगा और इस वक्त बिहाड़ी में तकरीबन महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 मिलीलीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी, जलालपुर पीरवाला शहर के मसरूफ तरीन रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी सरापा एहतजाज बन गए और इंतजामिया से सीवरेज के दरीना मसले को फौरी हल करने का मुतालबा करने लगे। मजीद जानते हैं MF5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में मुल्तान रोड पर। मुल्तान रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। आए रोज हादसात यहाँ का मामूल बन चुके हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि रोड की खस्ता हाली के साथ साथ गटरों का उबलता हुआ पानी भी आवाम के लिए वबाल जान बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, एक्चुअली ये हमारी दुबई प्लाजा है, मोबाइल मार्केट है, इसके बाहर गुज़िश्ता 15 से 20 दिन हो गए हैं, पानी बहुत गटर का पानी उबल रहा है, जिसकी वजह से बहुत पानी इकट्ठा हुआ है और रोड भी टूट फूट का शिकार है और रोज़ आए दिन कोई ना कोई हादसात होते रहते हैं। तो लिहाजा हमें इसका कोई किया जाए हमारे लिए। हम TMO साहब को कई मरतबा गाहे बगाहे इतला दे चुके हैं कि हमें ये मसले का हल किया जाए, लेकिन वो आते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से इसका कोई हल नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का शिकार है और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई बाइक से गिर जाता है कोई, और हमें ये मुश्किलात है। हमारे कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है, कस्टमर अंदर दुकान के मार्केट के अंदर नहीं आ पाता। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड की तामीर भी कराई जाए और साथ साथ सीवरेज का निज़ाम भी सेट कराया जाए ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। जी, अब बात करते हैं औस्ता मोहम्मद की, जहां ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ ठेकेदार वाहिद मोहम्मद बख्श बोर्ड की क़यादत में 74 रोज से जारी एहतजाज को MPA मीर जान मोहम्मद खान जमाली और मीर फारूक खान जमाली और ठेकेदारों ने चेयरमैन मोहम्मद अयूब खोसो की यकीन पर खत्म करने का ऐलान किया है। इस मौके पर ठेकेदार वाहिद बख्श बोहर ने कवरेज करने पर MM5 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाजबात अदम अदाई के खिलाफ 74 रोज़ गुजर गए थे, आज कैंप ख़त्म किया वाहिद बख्श भाई ने। आइए मज़ीद इस वाहिद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले MM5 का, और इसने तकरीबन 74 दिन हमारी जो भी खबरें थी हुकूमत वाला तक पहुँचाई। आज मेरा मसला हल हुआ है, हमारी यूनियन ने हमारा मसला हल किया है। जो हमारा सदर आया हुआ था उस जहरालयार से, और मीर जान मोहम्मद खान जमाली और मीर फारूक खान जमाली, और उन लोगों ने मेरी कोशिश करके जो मेरा मसला था और मसले हल करने की मुझे यकीन दिलाई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा मसला हल किया जाएगा। और मीडिया का और दोस्तों का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जो MM5 का, जो उन लोगों ने मेरी बिल्कुल जो भी खबर बिल्कुल हुकूमत वाला तक पहुँचाई। शुक्रिया जी। ये वाहिद बख्श ठेकेदार था जो MM5 TV वालों का शुक्रिया अदा किया। MM TV के साथ नज़ीर अहमद चाहते हैं, उस्ताद मोहम्मद जाफराबाद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी कोटा बंद करके 5 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे जिला लोधरा की 19 फ्लोर मिल्स बंद हो गई। शहर में आटे की किल्लत का खदशा हो गया। मज़ीद जानते हैं मेहर शोएब की इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों में आटे की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा सामने आया है, जिससे आटे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। दूसरी जानब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी कोटा बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 5 रोज हड़ताल करके फ्लोर मिल्स बंद कर दी। इस हवाले से जिले सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हाफिज कीजर अब्बास का कहना था कि जिला लोधरा की 19 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की गंदम की जिरा की सरकारी पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। अब फ्लोर मिल्स सरकारी गंदम नहीं खरीदेगी। मौजूदा पॉलिसी से आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत मुतालबा तस्लीम करे, वरना
5 रोज बाद मिल्स बंद कर देंगे। मुज़ाकरात ना होने पर ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ जाएगी। ये बुरान गंदम की सप्लाई बर वक्त ना होने की वजह से पैदा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इस बुरान में इजाफे का खदशा है। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल डिवीजन के शहर हुज्जा शाह मुकीम में भी पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं? जी, पूरे मुल्क की तरह साहिवाल डिवीजन के शहर हुज्जा शाह मुकीम में भी पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं एरिया इंचार्ज मोहम्मद खालिद साहब। मजीद पोलियो मुहिम के हवाले से हम इनसे आगाही लेंगे। जी खालिद। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद खालिद की 110 हुज्जा शाह में काम कर रहा हूँ फील्ड में। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में अब सिर्फ पोलियो का एक केस रह गया है जो कि सुबह बलोचिस्तान में है। वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क पोलियो फ्री है। जी खालिद साहब, पोलियो मुहिम के हवाले से आवाम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी टीमों के साथ तावन करें ताकि पोलियो का हम खात्मा कर सकें। जी, मेरे साथ मौजूद थे एरिया इंचार्ज मोहम्मद खालिद साहब जो पोलियो मुहिम के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जी, फैसलाबाद के इलाके स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट इस्माइल रोड पर कब्जा माफिया ने तजावुजात के ज़मर में रेत, बजरी और कबाड़ के ढेर लगाकर सड़क को दोनों तरफ से तंग कर रखा है, जिसकी वजह से आए रोज ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से आसिफ गोंदल के। जी आसिफ गोंदल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट इस्माइल रोड पे, जहाँ पे कब्जा माफिया ने जो है सड़क के दोनों तरफ कब्जा जमा रखा है और रेत, बजरी और जो है कबाड़ के ढेर लगा रखे हैं। हमारे साथ इस वाले से एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए। जी सर, इस्माइल रोड के दोनों तरफ कूड़ा क्रिकेट और रेत बजरी के ढेर लगाए हुए हैं कब्जा माफिया ने। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कब्जा माफी ने दोनों तरफ जो है ढेर लगा रखे हैं रेत, बजरी और सीमेंट के और जो है कबाड़ इकट्ठा कर रखे हैं, इनके खिलाफ जल्द अज जल्द जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा टीम के साथ आसिफ गोंदल, MM5 न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाबी अदब के अजीम सूफी शायर पीर सैयद वारिस शाह के 3 रोज़ा 223वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज शेखुपुरा के इलाका जिंडारा शेर खां में हो गया। तफसीलात जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे राना मोहम्मद इदरीस से। जी राना इदरीस, आगाह कीजिएगा। विदा हुंदा पंजाबी अदब के अजीम सूफी शायर पीर सैयद वारिस शाह के 223वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज पार्लिमानी सेक्रेटरी एंड कल्चर हुकूमत पंजाब नदीम क्रैशी, डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया और DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला ने दरबार शरीफ को गुस्ल देकर किया, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। वारिस शाह पंजाबी अदब के अजीम सूफी शायर और इनकी तसनीफ ही लाजवाब शाहकार है। पीर सैयद वारिस शाह ने इस उर्स ते असी फरूखाबाद तो आए हैं, जेड़े पंजाब दे एक नामवर सूफी शायर गुजरे ने, जिन्हां दा नाम पंजाबी ज़बान दे मौज़ज़ ते शेक्सपीयर दे विच लिया जांदा है। असी इत्थे इक्कत ते इहतराम नाल इत्थे हर साल हाज़री देते रुठड़े यार मना सैयद वारिस शाह शेखुपुरा के देहाती कस्बा जंडियाला शेरखां में पैदा हुए। आप पूरी दुनिया में जहां जहां पंजाबी बोली और समझी जाती है, वहां वहां वो जंडियाला शेरखां की पहचान बने।
आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रूहानी शागिर्द और बाबा बुल्ले शाह के हम असर थे। आपको पंजाबी जबान के सुच्चे मोती और वारिस समझा जाता है। दुनिया भर से आए हुए लोक फनकार अपने अपने फन का मुजाहरा करके सैयद वारिस शाह को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद अदरीस, MM5 न्यूज, फारूकाबाद। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो चुका है। सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दरबार साहब को फूलों से सजाया गया और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। लंगर हाल, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और मेडिकल के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। यात्रियों को हुकूमत की जारी करदा कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। हुजरा शाह मकीम के नवाही कदीमी कस्बा अटारी को अंग्रेज दौरे हुकूमत में मंडी हीरा सिंह का नाम दिया गया, जिसे 1994 से मंडी अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने यहाँ रेलवे लाइन बिछाकर स्टीम से चलने वाली रेल चलाई, जो फ्रीद एक्सप्रेस के नाम से आज भी चलती है। इस तारीखी कस्बा के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मियां मुजम्मिल मुनीर की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के 25 किलोमीटर मशरक में सदियों पहले दरियाए सतलुज के किनारे गांव अटारी में पुलिस स्टेशन हुआ करता था। इस इलाके की गंदम लज्जत के लिहाज से पंजाब भर में मशहूर थी। अंग्रेज सरकार ने अजनास को बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाना चाही तो सिख और हिंदू काश्तकारों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। इस वक्त एक बड़े जिम्मेदार हीरा सिंह ने रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन सरकार को पेश कर दी। 1920 में अंग्रेज हुकूमत ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी। हमारे शहर का नाम मंडी हीरा सिंह था। 1994 में उसे तब्दील करके मंडी अहमदाबाद रखा गया। अंग्रेज सरकार ने काम मुकम्मल होने पर इस रेलवे स्टेशन का नाम मंडी हीरा सिंह रखते हुए स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी चला दी, जो अब फरीद एक्सप्रेस के नाम से चलती है। यहाँ पर तारीखी अहमियत के हामिल मंदिर आज भी मौजूद है, जहाँ गवर्नमेंट ने बॉयज हाई स्कूल बना दिया है। यहाँ लेस्को, वापड़ा और नादरा के दफातर मौजूद नहीं। इलाका मकीनों को मीलों का सफर तय करके शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम का रुख करना पड़ता है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां मुजम्मिल मुनीर, MM5 न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।